ہاں جی یہاں پہ رکے گا. آندھی ہے, طوفان ہے, مسیح کشتی میں ہے, سو رہے ہیں. آگے پڑھیے گا, میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا, آپ کی زندگیوں پر اپنی زندگی پر لے کے جاؤں گا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا, اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا, ساکت ہو, تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا, تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے, یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ سب کہیں گے ہاللویا, ہاللویا. شاگرد کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں, کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی اس میں رہ کر سکونت کرتی تھی. اب الوہیت کی معمولی کیا تھی؟ خدا خود اس بدن میں آیا. ہاللویا, سب کہیں گے ہاللویا. خدا خود اس بدن میں آیا تھا. کسی نے سوال کیا, کیا خدا اس بدن میں آ گیا تھا تو آسمان کا نظام کون دیکھ رہا تھا, دنیا کا نظام کون دیکھ رہا تھا؟ اور میرے عزیزو, میرا اور آپ کا خدا لامحدود خدا ہے. اور اگر یہاں پر ہے تو وہ پاکستان میں میرے گھر پر بھی موجود ہے, وہ امریکہ میں بھی ہے, وہ کینیڈا میں بھی ہے, وہ آسٹریلیا میں بھی ہے, وہ یورپ میں بھی ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. اور وہ اپنے لوگوں پر نظر رکھتا ہے, اس نے اپنی ہاتھ کی عطل پر ہماری شکلوں کو رکھی ہے. کتنا بڑا ہاتھ ہوگا, کتنی آبادی ہے دنیا کی, سب کی شکلیں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر پوز رکھی ہیں. اب خدا کہتا ہے, بوجھ کے تھکے دبے مندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں. اب یہ کشتی کیا ہے؟ اس وقت کے دور میں یہ فزیکل ایک شپ تھا, کشتی تھی. آج کے دور میں یہ ہماری زندگیاں ہیں. ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بہت ساری پرابلمز کو فیس کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بیماریاں بھی آتی ہیں, مشکلاتیں بھی آتی ہیں, ٹینشنیں بھی آتی ہیں, ابلیسی بندھن بھی حملہ کر دیتے ہیں. بچوں کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے, ماں باپ کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں, جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے. لیکن یہ جو کشتی ہے یہ ایک بدن ہے. یسوع مسیح نے کہا, کیوں گھبراتے ہو؟ آج میرا خدا آپ کو کہتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ کیوں گھبراتے ہو. وہ ہواؤں کو روکنے والا خدا ہے, وہ پانی کو روکنے والا خدا ہے, وہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو مرنے نہیں دیتا. لیکن جس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میرے مسیح کا بھی وقت مقرر تھا, وہ اس دنیا میں آیا, خدمت کی, مناظر کی, چلے گئے. اب روح موجود ہے, اب اس کا جلال موجود ہے. اس نے کہا مجھے تو دیکھ لیا ہے, میرے باپ کو بھی دیکھ لیا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میرا باپ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. مجھ سے مانگو میں دوں گا, میں مہیا کروں گا, میں ہر ایک چیز دوں گا. میرا اور آپ کا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح حکم دے, حکم صرف ایک ہی بندے کے پاس ہوتا ہے, وہ خدا کے پاس. وہ خدا کے پاس ہے, وہ ہواؤں کو بھی روکتا ہے. خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی. ویسے ہی خدا نے ہوا کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا. دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا سوائے ایک بندے, موسیٰ. موسیٰ نے پانی کو دو حصوں میں کر دیا. ایلیا نے آسمان سے بارش کو خدا نے وسیلہ دی. خدا مہیا کرتا, خدا اپنے لوگوں کو برکتوں پہ برکت دیتا. کہتا ہے یہ کون ہے جو پانی اور ہوا بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ یہ خدا تھا. کیا تھا؟ وہ خدا تھا جو ہمارے درمیان تھا, لیکن وہ بدل روح جو اس کے اندر تھی وہ خدائی روح تھی. کیا تھی؟ خدائی روح تھی. وہ خدا کا جلال تھا, وہ خدائی روح تھی, لیکن بدن جو تھا وہ بشریت تھی. سوال اٹھتا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے انہوں نے کہا ایلی ایلی لما شبعتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پھر کہتا ہے میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں. پھر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے اس میں رابطہ ہے. کہتے ہیں کیا خدا تمہارا صلیب پر مر گیا؟ جی نہیں, بشریت تھی.
बशरियत क्या है, वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। जो इंसान था, जो बदन था, खून उसमें से निकल रहा था, पानी की तरह बह रहा था। उसको प्यास भी लगती है, वो रोता भी है, उसको भूख भी लगती है, वो लोगों के साथ जाकर बैठता भी है, खाता पीता भी है। वो कामिल इंसान भी था जो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे आपने जलाल। सब कहेंगे हालेलुया। आज यीशु मुझे और आपको कहता है डरो मत। अगर यीशु हमारी जिंदगी में है, अगर यीशु हमारे ख्यालातों में है, हमारी सोचों में है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके नाम को जलाल देने की जरूरत है। सब कहेंगे हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। Praise God, praise God, hallelujah। ये वो स्टोरीज है जो अपने बचपन में संडे स्कूल में सुनी थी, और जब हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस थोड़ी से जाना है, तब की सुनी हुई आज तक जहन में है। मुझे याद है कि मोजिस के लिए मैंने एक टीचर मुकर्रर की है, मेरी बहन जिसने मेरे साथ असेंबली की थी। वो इसको फोन पे सिखाती है, यूसुफ की स्टोरी मोजिस आती है, आदम की आती है, हवा की आती है, काइन अबल की आती है, याकूब की आती है, अब्राहम की, बहुत सारी स्टोरीज मेरे बेटे को आती है। क्या है, बेटे की सिरा पर सिर्फ उसके जुबान का मसला है, तो वो बोल नहीं पाता, क्योंकि मूसा जो था नाम ऐसा है, तो उसके साथ शख्सियत भी मैच हो जाती है, कैरेक्टर मैच करता है। तो कोई मसला नहीं, खुदावन मेरे बेटे को बरकत देगा, अपने जलाल का जुम्मे इस्तेमाल करेगा। कल बहुत इसकी बर्थडे थी, तो मैं पास्टर कामरान का, पास्टर व्यास का, नबी नबील का सबसे शुक्रगुजार हूं कि वो आए, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं जिनको अपने घर नहीं बुला पाया, छोटा फ्लैट था, 20-22 लोगों की जगह थी, तो खुदा ने चाहा तो जरूर जिनको नहीं बुलाया, नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो मैंने हॉल के लिए पता किया, हॉल मिलना मुमकिन नहीं था। एक हॉल मिल रहा था, वो 220-230 दिनार का, तो बहुत हैवी जा रहा था, तो इतना पैसा लगाने की जो है वो जरूरत नहीं थी। चंद पैसों में अगर आपकी खुशी पूरी होती है, अगर आप सेविंग बाहर के ममालिक में करते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं माजरत चाहता हूँ जिनको मैं कल नहीं बुला पाया, तो सब आए, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो हमारी खुशी में शामिल हुए और खुदा के नाम को जलाल दिया। सो खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ एक दफा फिर से जमा। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 14वां बाब 22। साथ में पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप सब अपनी बाइबल खुदावन के घर में लेकर आए, ताकि खुदावन जो है वो हम सबको बरकत दे। चलें जी, पढ़ेंगे कि टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। सो खुदावन यीशु नासरी जो बादशाह का बादशाह है, यहाँ पर लिखा यीशु ने शिगिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए। कहाँ चले जाए? पहले पार चले जाए। इससे पहले का कौन सा वाक्या था? इससे पहले एक वाक्या था, यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, और जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं तुम पहले पार चले जाओ। कहाँ चले जाओ? पार चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। यीशु मसीह क्या करते थे? अकेले जाकर दुआ किया करते थे। क्या करते थे? यीशु की जिंदगी में दुआ। अब हम कहते हैं कि अल्लूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर संपूर्णत करती थी, तो वो भी दुआ करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके पास एक क्या था? बदन था। क्या था? बदन था, बशरियत। वो हमें सिखाने आया था, वो हमें बताने आया था कि कैसे अपनी जिंदगी को बसर करना है। और जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को भेज देते हैं, तो वहां पर भी क्या आता है? आंधी आती है, कश्ती जो है वो डगमगाने लगती है, और उनको दूर से कोई चीज नजर आती है। शिगिर्द जो है वो डर जाते हैं, शागिर्द डर जाते हैं, वो कहते हैं, घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कौन है जो पानी पर चलता है? भूत का वर्ड इस्तेमाल हुआ। वो समझते हैं कोई भूत है, सफेद पोशाक पहने हुए, कपड़े पहने हुए पानी पर चल रहा है। पानी पर तो एक ही जात थी, वो कौन सी जात थी? खुदा बाप की जात थी। सब कहेंगे हालेलुया। क्या आप सो रहे हैं? आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सो रहे हैं?
जहां पर खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन वीरान और सुनसान थी, जगहों के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? वही पानी की सतह पर वही रूह बदन में आकर जुम्बश कर रही। हालेलुया! वही रूह बदन में आकर जुम्बश करती हुई नजर आ रही है। शागिर्द डर गए, परेशान हो गए, घबरा गए। ये कौन है जो पानी पर चलता हुआ आ रहा है? नजर की तो कहते हैं हमारा आका है, हमारा खुदा है, हमारा उस्ताद है, हमारा रब्बी है, जिसके हम नक्शे कदम पर चलते हैं, बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, जो बादशाहों का बादशाह, बुलंदियों पर रहने वाला खुदा, हय्याले कय्यूम है, बचाने और छुड़ाने वाला खुदा है, फिदिया देने वाला खुदा है। वो मेरा और आपका खुदा पानी पर चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास जाता है। रात का कौन सा पहर था? चौथा पहर था। कितने पहर है? कितने पहर होते हैं किसी को मालूम? दिन के 4 और रात के 4। ये टाइम कितने बजे का होगा? कोई भी एक बता। चौथा पहर है ये रात का, 3 से 6 बजे। चौथा ठीक हो गया। 4 कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 4.25 कह सकते हैं। पहर चलते थे यीशु मसीह पानी को चलते हुए जा रहे हैं। शागिर्दों में जोश पैदा हुआ कि हमारा आका है, हमारा खुदा है। पहले वो घबराए, बाद में उनको पता चला कि ये हमारा यीशु है, क्योंकि रूहियत की सारी मामूली मेरे और यीशु में, अब मेरे यीशु में मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। पतरस बड़ा ही जोशीला आदमी था। क्या था? जोशीला था, हर काम जोश में करना। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया एक बंदे के, उसने कान काट। यीशु मसीह कहता है कि ऐसा नहीं करता। यीशु मसीह ने कहता है, यीशु मसीह को मैं तुझे पकड़वाने नहीं दूंगा, तो तू ही मेरा 3 दफा इनकार करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर भी यीशु को कहता है कि मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलूं। यीशु कहता है आजा। यीशु के साथ, यीशु को देखता देखता पानी पर चलता है। जब तक यीशु को देखता है पानी पर चलता है, जब अपनी निगाहें राइट लेफ्ट देखता है, पानी है, लहरें आ रही है, हवा चल रही है, उसी वक्त पानी में डूबना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी जिंदगी है, जब तक हम यीशु के साथ चलते हैं, प्रॉब्लम्स आती भी है तो वो खत्म हो जाती है, मुश्किलातें आती भी है तो वो खत्म हो जाती है। मेरे से तो याद रखिएगा, इंसान के साथ जो बीमारी उसके साथ आती है या उसको लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ नहीं कर रहा तो बीमारी आती है। नबियों को भी जैसे दिन हम बात करेंगे, बीमारी में खुदा के नाम से बुलाओगे। नबियों को भी बीमारी में मुब्तला थे, मर गए, मुश्किलात में थे, मर गए। बीमारी, मुश्किलातें, परेशानियां इंसान के ईमान को बढ़ाने के लिए आती है। पौलुस रसूल खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता था। यीशु मसीह का हीरो कहा गया, बाइबल का हीरो किसको कहा गया है? पौलुस रसूल को। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? तकलीफ में रहता, परेशानी में रहता। कहता जो कांटा चुभता है उसको निकाल। यीशु कहता तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। आइए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। कलाम अभी जारी है, कलाम जारी है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। सोचिए, क्या बीमारी है, क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी है, क्या अपनी सी बंधन है, क्या रुकावटें हैं? परेशान नहीं होना। खुदा कलाम मुकद्दस के मुताबिक कहता है घबराना नहीं है। तेरे लिए, मैथ्यू तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। आए खुदा यीशु तेरी कलीसिया के लिए तेरा फजल ही काफी है। आइए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाते, जोरदार तालियां। खुदा अपने लोगों पर ध्यान करता है, खुदा अपने लोगों पर निगाहें रखता है। वो कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा मुहैया करता है। खाने पर खुदा ने बरकत दी, शुक्र किया और शुरू कर दिया। क्या किया? शुक्र किया और शुरू कर दिया। किसी ने मुझे कहा कि पादरी साहब
क्या हम दुआ करते हुए बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से खाना शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कलाम में नहीं। खुदा यीशु मसीह ने शुक्र किया और यीशु मसीह ने एक ही हुक्म दिया, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, बाकी सारे काम यीशु नाम से। आमीन। कलाम मुकद्दस ज्ञान करता, अगर झूठ है, अगर प्रेम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं। अगर मैं गलत प्यारी करता हूँ तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कलाम मुकद्दस में हुक्म बाप बेटा और रूह कुद्दस का एक ही है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, मैं बोलता नहीं, हर किसी का अपना फेथ है, हर किसी ने जैसी तालीम को हासिल किया है, वो कहते हैं बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से रोटी को खोलो, बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से मैं मसा करता हूँ, बाप बेटा और रूह कुद्दस। ऐसा नहीं, यीशु के नाम से हर काम जारी है। बपतिस्मा बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से दे रहे हैं, वो खुदा ने हुक्म दिया है, बाकी सारे काम यीशु नाम से। एक ही नाम है जो बख्शा गया है, वो सब नामों से आला नाम है, अफजल नाम है। यहोवा नाम भी था, एलोहीम भी था, यीशु नाम क्यों दिया गया? ये मुकाशवा है, ये खुदा का मुकाशवा है, ये खुदा का मुकाशवा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि हम उस नाम को जाने, उस नाम को पहचाने। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो खुदा यीशु मसीह को एक अलग बरकत दी गई, खुदा बाप ने वसीला से, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। वो बाप खुद बेटे में रहकर काम किया करता। सब कहेंगे हालेलुया। सब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक मौजूदा दिखाया, बड़ी तमाम थी, उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको अपने साथ ले लो, जाया नहीं होने दो। हम भी कोशिश करेंगे जब हम खाना खाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, या घर में भी उतना ही खाना डालें जितना हमने खाना है, क्योंकि हम खाने के लिए जो है वो कमाते हैं, मेहनत मजदूरी जो करते हैं वो खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए करते हैं। तो खाने को जाया करने से अच्छा है कि हम थोड़ा ले लें, खाए, ज्यादा भूख लगी है तो फिर जाकर दोबारा से ले लें, खाने को जाया ना करें। मेरे मसीह की तालीम यह है कि उसने कहा कि जो बच्चे हुए टुकड़े हैं उनको अपने साथ ले लो, और उन्होंने ले भी लिए, देख सकते हो उन्होंने लिए, बाद में भी काम आ सकते थे। खुराक को, खाने को जाया ना करे, बल्कि खुदा के नाम को फिलहाल देने के लिए हमेशा जो है वो तैयार है। अभी चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट और दूंगा, यहाँ पर बात करते हैं। द्वितीय शमौन पतरस, तोमा, याकूब और यूहन्ना 2 शिष्य, यूहन्ना 21:5 आए। आइए मेरे साथ बाइबल कौन पर अपने साथ लेकर आता है, मैं देखूंगा नहीं, खुद ही बताते। जब भी खुदा के घर में आए, खुदा के खातों, जब भी कलाम मुकद्दस को पेश करते हैं, हमारी जात बताते हैं, अपने साथ बाइबल और एक डायरी लेकर आए। हमारी आदत थी जब भी चर्च में जाते हैं बाइबल और एक डायरी लाजमी रखते हैं। आज भी मैं अपने पास एक डायरी रखता हूँ, कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं फौरन उसको जो है वो लिख लेता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में मैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल करूँ, अपने मैसेज में शामिल करूँ, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। 21 बार उसकी 5वीं आई। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कच्ची की जंगली तरफ जान दो तो पकड़ो नहीं। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से चीज खींच ना सके। उसने शरीर में जिससे यीशु मोहब्बत करता था पतरस से कहा कि ये तो खुदाउन है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदाउन है फुटा कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था और झील में निकला। और बाकी शहीद छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी थी। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। कहने का मकसद ये था कि यीशु और मसीह जब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, बदन की बात करते हैं, जब तीसरे दिन बदन को जो है वो तीसरे दिन बदन उनको नहीं मिला, पहले दिन बदन को जब जमीन में जो है वो दफना दिया गया, छुपा दिया गया, आगे पत्थर रख दिया गया, उसके बाद 40 दिन तक यीशु मसीह से विधों पर जाएगा। अब लोगों का सवाल उठता है कि
अगर वो बदन था तो वो बदन गया कहाँ? बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, मुझसे लोग भी पूछेंगे। लास्ट टाइम मैंने मैसेज दिया और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कलाम मुकद्दस में आप अगर कुछ नहीं समझ पाते या कुछ ऐसी बात होती है जो खादम ने ऐसी बोल दी है, तो आप खादम से डायरेक्ट पूछें। आमीन। आप खादम को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 3-4 लोगों ने सवाल किए और मैंने इनको जवाब भी दिए। खुदा उनका शुक्र हो। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर वो बात ना मिलेगी जो गलत है, तो खादम ने बोल दिया, तो खादम का हक बनता है कि वो स्टेज पर खड़ा होकर कलीसिया से माफी मांगे। क्या करे? अगर बाइबल मुकद्दस में वो बात दर्ज है तो कलीसिया जो है उस बात को क्योंकि देखें, एक शख्स 100 लोग बैठे हुए हैं, सबके मुताबिक कलाम में पेश कर सकता है। कोई नशा करता होगा, कोई नस्वान लगाता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई बदी करता होगा, कोई छेड़छाड़ी करता होगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन कलीसिया में तरह तरह के लोग बैठे होते हैं। हर कलाम पूरी कलीसिया के लिए होता है, हालांकि खादम के लिए खुद भी होता है, खुद पे भी आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपको लगती है तो आप ये ना सोचें कि एक बंदे के लिए कलाम हुआ है। कलाम के लिए जब दुआ की जाती है तो दुआ से पहले पास्टर कामर ने क्या दुआ की? खुदा अपने बंदा को बरकत दे, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह। तो जब पाक रूह बोल रहा है तो खादम के ऊपर इल्जाम क्यों? जो चीज बताई जाती है, समझी जाती है, अगर खादम कलाम के मुताबिक नहीं है तो हमारा राइट बनता है कॉल मिलाए, फोन करें, पास्टर जी ये आपने गलत कर दिया, बोला था, इसका समझाएं। अगर पादरी समझाने के लायक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जी पादरी ने गलत बोला। अगर पादरी समझा रहा तो इसका मतलब है कि मुझे समझना है कि हाँ मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, बाइबल की तालीम ये है। और मुझे पता है कि हमारे मसीहत के अंदर बहुत सारे तरीके पाए जाते हैं। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, बहुत सारे डिनोमिनेशन है, क्या लगता है। तो मैं पहले ही लास्ट में भी कहा था कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उन रटाई दुआओं के लिए दिल आजारी जिसकी मुझे मैंने पहले ही कहा था कि जिन की दिल आजारी हुई है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कलाम में ऐसा नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई बात ऐसी लगे तो डायरेक्ट खादम को पूछे, ताकि खादम जो है वो सवाल के जवाब देने वाला बने। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु नासरी ने बात कर रहा था मैं यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह को दफनाया गया, तीसरे दिन जो बदन जाहिर हुआ, वो कौन सा बदन था? खुदा का जलाली बदन था, ज़हूर था खुदा का। आपको पता है अब्राहम के पास कौन आता था? खुदा आता था। किसने कहा? कौन से घर में? हाथ खड़ा करिएगा। आमीन। खुदा आता था, वो खुदा का ज़हूर था, जिसको कहते हैं थूफनी ज़हूर। थ्यूफनी ज़हूर था जो खुदा का इब्राहिम के पास आया करता था, जिसने खुदा इब्राहिम को आकर बरकत दी। एक जगह फरिश्तेगान लिखा है, एक जगह खुदावंद लिखा है, और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु का थ्यूफनी ज़हूर था। अगर वो बदन था तो बदन गया कहाँ पर? वो बदन जो मट्टी का बदन था वो कहाँ गया? वो बदन थ्यूफनी ज़हूर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर मैं बताने का मकसद ये है कि वो थ्यूफनी ज़हूर अपने शागिर्दों के साथ बैठकर उनके लिए मछलियां रेडी कर रहा है, और वो मछलियां खा रहा है, क्योंकि खुदा हर काम करने की कुव्वत और ताकत रखता है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी खुदा में रहकर सकूनत करती है। तो खुदा कौन है? मेरा और आपका मसीह है, जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी है और उसमें रहकर सकूनत करती है। और खुदा ने उसको हुक्म दिया है, खुदा ने उसको बरकत दी है, खुदा ने उस पर अपने ध्यान को दिया है। बाप ने बेटे को भेजा है, लेकिन बाप बेटे के अंदर रहकर काम करता है। एक ही रूह है जो हमारे दरमियान रहती है, हमारे अंदर रहकर वही काम करती है। वही रूह पाक रूह है, जिसके वसीला से मौत होते हैं, जिसके वसीला से बीमार ठीक हो जाते हैं, मुश्किलें निकल जाती है, बीमारियां खत्म हो जाती है, मुर्दे जी उठते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं। वो नाम यीशु नाम है, जिसके वसीला से होते हैं, क्योंकि यीशु के वसीला से ही हमें निकाल। एक नाम से नहीं है, वो नाम यीशु
नाम है। एक गीत है, बोलते हैं, नैया पार लगा मेरी नैया पार, अंधों को आंखें दी तूने, अंधों को आंखें दी उसने, पानी के मटकों को मैल में बदल दिया, 5,000 को शेर किया, ऐसे काम किए जो कोई कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है, वो खुदा बाप है जो बेटे में रहकर करता है। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदा यीशु नासरी ने आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दी है, और हमने यीशु के जलाल को और उसके कामों को देखा है कि खुदा ने कैसे अपने जलाल को उंडेला है, और खुदा अपने लोगों पर अपनी बरकतों को उंडेलता है। जैसे जैसे खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहकर उनको बरकत देता है। खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बीमारों पर हाथ रखो तो वो चंगे हो जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो बादशाहों का बादशाह है, वो बुलंदियों पर रहने वाला खुदा है, वो हय्यल कय्यूम है, वो बचाता और छुड़ाता है, वो फिदया देने वाला खुदा है, वो रिहाई करने वाला खुदा है। आज के कलाम के वसीला से जो बरकत आपने रिसीव की है उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि खुदा वो बादशाहों का बादशाह है, वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, और उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। और आज मेरा भाव यहाँ पर मौजूद है, आज मेरा खुदा यहाँ पर मौजूद है, यानी यीशु नासरी यहाँ मौजूद है, जिसके वसीला से हम बरकत करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। यीशु के लिए बहुत सारी तालियां। एक नाम अच्छा है, यीशु के नाम से। Praise God, hallelujah. You are a good God. आसिफ किधर गए? Hallelujah. 15 मिनट रह गए सर, किसी का वादा करें। ओह, ओके, आइए अपने आप को तैयार करें। और इसके दरमियान मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने दुआ की है और खुदा ने अपने बड़े फजल से चंदा को बेटी दी है, और सुबह सलीम ने मुझे कॉल की और कहने लगा कि सब दुआ करें, शायद आज ही खुदावन जो है वो हमें ब्लेस करने जा रहा है। तो खुदा का शुक्र है, हम दुआ कर रहे थे, और मैंने कहा मैंने अपडेट रखना तो खुदावन का शुक्र करते हैं। हमारे चर्च के अंदर सीरीज फैमिली वालों के अंदर ऐड हुआ है और सीरीज एक और मेंबर तो ये देने का वक्त हमने लिया है, खुदा से बरकत को ली है, कलाम लिया है, और हमें वक्त है कि हम खुदा के हुजूर में खुशी के साथ एक दूसरे कलाम करते हैं, खुदा की खुशी से देने वालों को जीव करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के मौत जात के बारे में गीत है। आज हमने यीशु के बारे में सीखा है, तो हम उसके मौत का जिक्र करेंगे। हालेलुया। यार बुद्धि बेटी नो जिंदा दो मोती काली, यार बुद्धि बेटी नो सवाल नो काली, यार बुद्धि बेटी नो जिंदा दो मोती काली, यार बुद्धि बेटी नो सवाल नो काली। आसी मरण के बाद तू, आसी मरण के बाद तू दिए हो यीशु बेखंड दुखदा, अपनी कलिसिया के धन्यवाद फिरवा, बात से ओ मंदरा फिरवा, अपनी कलिसिया के धन्यवाद फिरवा, बात से ओ मंदरा फिरवा, जन्म के अंधेरी बोले जाके लोग बोले जा